میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب پہلے سے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں اور اس کو اتنا مشہور کر دیا گیا ہے کہ نماز کا طریقہ تمہیں حدیث کی کتابوں سے ہی تو ملے گا. قرآن نے تو صرف نماز کا حکم دیا ہے، نماز کیسے پڑھیں یہ تو حدیث سے پتہ چلے گا. ارے میرے بھائی، حدیث کی کتابیں صدیوں تک نہیں لکھی گئیں. جب سب سے پہلی حدیث لکھی گئی وہ موطا امام مالک ہے، وہ بھی کم سے کم 1 صدی کے آس پاس لکھی گئی. اس سے پہلے سب بنا حدیث کے ہی نماز پڑھتے تھے. آج بھی اگر لاکھوں کا مجمع ہو کسی جگہ اور ان سے یہ پوچھا جائے کہ جس نے نماز کی ابتدا حدیث سے کی ہو وہ ہاتھ اٹھا دے، لاکھوں میں ایک آدمی بھی نہیں ملے گا آپ کو جو یہ کہے کہ میں نے نماز کی شروعات حدیث سے کی ہے. وہ یہی کہے گا کہ میں نے اپنے باپ داداؤں کو، اپنے ماں کو یا اپنے باپ کے ساتھ نماز پڑھی، یا اپنی بہن کے ساتھ یا اپنے بھائی کے ساتھ. حدیث بچپن سے ہی، مطلب بچپن سے ہی جب بچہ جیسے ہی ہوشیار ہوتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ جھکنا شروع کر دیتا ہے یا اپنے باپ کے ساتھ جھکنا شروع کر دیتا ہے اور وہ ان کی نقل کرنا شروع کر دیتا ہے. آہستہ آہستہ وہ پوری نماز جان لیتا ہے. یا اگر کمی ہوتی ہے تو آس پاس کے مولانا سے یا اپنی کسی گھر کے کسی بھی لوگوں سے وہ نماز پوری طرح سیکھ چکا ہوتا ہے. حدیث سے کوئی نماز سیکھتا ہی نہیں. حدیث تو جب دیکھنے میں آتی ہے جب وہ اختلاف میں پڑتا ہے. اب میں بتا دوں یہ حدیث ہے کیا. حدیث کیا ہے اس کو ذرا سمجھیں. قرآن کیا ہے اس کو ذرا سمجھیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتر رہا تھا تو یہ ایک ساتھ تو پورا اترا نہیں ہے. جتنا اترتا تھا اس کو لوگ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کے سناتے تھے تو اس کو لکھنے والے لکھ لیا کرتے تھے اور جو یاد کر سکتے تھے اس کو یاد کر لیا کرتے تھے. اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا اور جتنی جتنی آیتیں یا جتنی جتنی صورتیں آتی تھیں اس کو حفظ کر لیا کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ تو ویسے ہی یہ ایسا اترا تھا کہ ان سے تو بھول ہونے کی مطلب ہی نہیں ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتا دی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈر سے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں تو زبان کو حرکت دیتے تھے. تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے وہ زبان کو حرکت دینے سے بھی روک دیا اور کہا کہ نبی آپ خاموشی سے بس ہمارے کلام کو سنتے رہیں، اس کو یاد کرا دینا، وقت پر یاد کرا دینا اور اس کی حفاظت کرنا اور آپ کبھی نہ بھولیں. یہ سب ذمہ داری ہماری ہے اور اس میں ہم پوری ذمہ داری، مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری ذمہ داری لی. کن کن باتوں کی؟ اس کا جمع کرا دینا، اس کو یاد کرا دینا وقت پر، اور اس کو آپ کبھی نہیں بھولیں گے اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرے گا. یہ ساری گارنٹی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لے رکھی ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس کو حفظ کرنا، یاد کرنا آسان رہا. اور صحابہ اکرام بھی ایک خاصی جماعت بن چکی تھی جو اس کو حفظ کر چکی تھی اور اس کو پوری یاد کر چکی تھی. تو جیسے جیسے جتنا یاد ہوتا تھا اور جتنا نماز میں قرآن پڑھا جاتا تھا، صحابہ بھی پڑھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، لکھتے تھے، یاد کرتے تھے، حفظ کرتے تھے. وہ جتنا آپ سمجھتے تھے وہ آگے لوگوں میں بڑھاتے تھے. وہ 100 200 کی تعداد تھی، وہ ہزاروں کی تعداد ہوئی، ہزاروں نے لاکھوں کو سنایا، لاکھوں نے کروڑوں تک کو پہنچا دیا. یعنی نسلاً بعد نسلاً ایسے ہی قرآن منتقل ہوتا آیا ہے اور ایسے ہی سنت منتقل ہوتے آئی ہے. کوئی دن ایسا نہیں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے دنیا سے جانے کے بعد بھی کہ ایک وقت بھی نماز رکی ہو. بلکہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن 5 وقت نماز نہ ہوئی ہو. کوئی سال ایسا نہیں ہے جس میں رمضان کے روزے نہ رکھے گئے ہوں. کوئی سال ایسا نہیں ہے جس میں حج نہ کیا گیا ہو یا زکوٰۃ نہ دی گئی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بھی. اسی طرح سے یہ نسل بائی نسل ہم کو ملتا رہا ہے اور آگے پہنچتا رہا ہے. اور اسی طرح سے اس میں کوئی آج تک کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. نہ تو قرآن میں کوئی اختلاف ہے
पूरा का पूरा महफूज बिना किसी शक के हम तक पहुंच गया। ये ना किसी हदीस से हमें मिला है और ना किसी किताब के ज़रिए मिला है, ये टोटल ऐसे ही मिला है जैसे अल्लाह के नबी पर नाजिल हुआ और पूरा का पूरा हम तक पहुंच गया। हाँ, ये ज़रूर हुआ है बात के सहाबा में कि उस दिन प्रिंटिंग प्रेस तो थे नहीं, तो इस काम को बढ़ाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान लिखे जाएं और लोगों को तकसीम किए जाएं, जो जहाँ जाए कुरान लेकर के जाए। इसी तरीके से नस्लन बाद नस्लन हमें नमाज मिली है। खुद अगर लोग ये कहते हैं कि पहले तो ये समझे मैं हदीस की जो बात कर रहा था कि वो हदीस क्या है। हदीस कहते हैं बात को। हदीस के माने क्या है? बात, यानी नबी का नाम लेकर जिस बात को बोला जा रहा हो उसको हदीस कहा जाता है, यानी नबी की बातें। अब नबी की बातें, किसने नबी का नाम लेकर जो बातें बोली वो किन लोगों ने बोली? वो आम लोगों ने, क्योंकि वहाँ ना तो सहाबा थे ना नबी थे। 200-300 साल के बाद में न सहाबा रहे, न ताबईन रहे, न तबे ताबीन रहे, सिर्फ आम लोग। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले 3, 4, 5, 7 लोगों के नाम आते हैं। उसके बाद नाम आता है कि हज़रत आयशा ये फरमाती हैं, या हज़रत ज़ैद ये फरमाते हैं, या हज़रत अबू हुरैरा ये फरमाते हैं। ये लास्ट वाला नाम हमें बता दिया जाता है और हम उसी को बोलते हैं। लेकिन इससे पहले 3, 4, 5 नाम पहले से होते हैं जो आम लोगों के होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हदीस का मतलब हुआ लोगों की बयान की हुई बातें जो लोगों ने नबी का नाम लेकर के लिखवाई गई। और जिस वक्त ये लिखी जा रही थी तो वो लाखों की तादाद में लिखी गई, लेकिन छान फटक करने के बाद में वो सिर्फ हज़ारों की तादाद में रह गई। कितनी लिखी गई? सबने नबी का नाम लेकर के लिखवाई थी। किसी ने ये नहीं किसी और का नाम लिया हो, सबने नबी का नाम लेकर के लिखवाई गई। और लिखने के बाद में उनको मुहद्दिसीन ने छान फटक करके वो अपनी किताबों में मुरतब किया, लिखा, इकट्ठा किया। वो कैसे? वो क्यों करना पड़ा? कि आम तौर से जब सदियां गुजर गईं तो लोगों की ज़ुबान पर तरह तरह की बातें आने लगी। कोई कुछ कह रहा है नबी का नाम लेके, कोई कुछ कह रहा है नबी का नाम लेके। तो हमारे इन बुज़ुर्गों ने, जो मुहद्दिस जिनको हम कहते हैं, इनको इसकी फ़िक्र हुई कि ये तो बड़ी अजीब बात हो जाएगी, लोग पता नहीं किस किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्यों ना इनको इकट्ठा कर लिया जाए और उन पर तहकीक करके इनको अपनी किताबों में जमा कर लिया जाए। तो ये काफ़ी टाइम के बाद की बात है। और इसमें जब कोई इंसानी काम होता है तो हमेशा ये छटती रही हैं। इसमें यानी ये समझ लीजिए कई लाख हदीसें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको जमा किया। और उसमें से जब ही उन्होंने खुद ही लाखों की तादाद में उन हदीसों को जो नबी का नाम लिखी गई थी उनको रद्द किया और उनको निकाल दिया, अलग निकाल दिया। यानी कुछ हज़ार हदीसें उन्होंने 70,000 के करीब हदीसें छोड़ी थी, जो आज 7,000 के लगभग हदीसें बाकी रह गई। उसके बाद भी ये छटती रही हैं हर दौर में। तो इनकी जो अहमियत है वो आपके सामने है। हमेशा इस पर काम होता रहा है और ये बराबर इसमें हमेशा शक की नज़र से देखा जा रहा है। इसमें ज़ईफ़ भी होती हैं, मौजू भी होती हैं, इसमें हसन भी होती हैं। तो जिसके जिसके जो मतलब की होती है वो अपने मतलब की हदीस ले लेता है। और हदीस में नमाज का कोई एक तरीक़ा बयान नहीं किया गया। अगर हम वज़ू का तरीक़ा देखेंगे या हम नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा देखेंगे तो हमें बहुत से इसमें इख्तिलाफ मिल जाएंगे, क्योंकि हमसे लोग कहते हैं कि नमाज तुम कैसे पढ़ते हो? तो ये तरीक़ा तो हदीस से पता चलेगा। अरे हदीस से हम क्या पता चलेगा? हदीस देखने की नौबत जब आती है जब आदमी इख्तिलाफ में पड़ता है कि मैं तो नियत ऊपर हाथ रख के बांध रहा हूँ, ये बंदा बराबर में मेरे पास बराबर में खड़ा है, ये नीचे हाथ बांधे हुए क्यों खड़ा हुआ है? तो जब हम देखते हैं कि दो तरह से लोग हाथ बांध रहे हैं, ऊपर और नीचे, वजह क्या है इसकी? तो फिर क्या होता है? फिर हम एक दूसरे से पूछते हैं तो वो बताता है कि बुखारी में ये तरीक़ा लिखा हुआ है। कि अच्छा, बुखारी में ये लिखा हुआ है। अब हम देखने के लिए गए, उसमें 2 तरीके, ऊपर हाथ बांधने के, नीचे हाथ बांधने के। वहाँ एक तरीका और भी लिखा हुआ है कि हाथ छोड़ के भी नमाज़ पढ़ी जाती है।
अब ये सब तरीके किस में हैं? सब हदीसों में हैं। तो मसले का हल तो वहाँ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कि अच्छे खासे नमाज पढ़ रहे थे, अपने जो तरीका हमारे माँ बापों का था वही तरीका सही था। ये तो इख्तलाफ बाद में हुआ। किसकी वजह से हुआ? कि उसमें अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग हदीसों की किताबें हैं, बुखारी है, मुस्लिम है, तिरमिज़ी है, अबू दाऊद है, नसई है, इब्न माजा है, बहुत सी किताबें हैं जिसमें अलग अलग तरीके बयान किए गए हैं। अब देखिए, रफ़-ए-दैन का कितना बड़ा झगड़ा है हमारे यहाँ। रफ़-ए-दैन का इतना बड़ा झगड़ा है कि अगर इसको हल करना चाहें तो कभी हल नहीं हो पाएगा। वजह उसकी क्या है? कि एक ही हदीस के अंदर, यानी अगर हम मिशकात ले लें तो मिशकात में रफ़-ए-दैन करने की हदीस भी है, रफ़-ए-दैन न करने की हदीस भी है। तो इसी तरह से नसई में रफ़-ए-दैन करने की भी है, रफ़-ए-दैन न करने की भी है। तिरमिज़ी में रफ़-ए-दैन करने की भी है, रफ़-ए-दैन न करने की भी है। तो बताइए, दो तरह की बातें कैसे हो सकती हैं? अब इसी में आलिम लोग झगड़ते रहते हैं कि ये हदीस ज़्यादा मजबूत है, ये ज़्यादा पायदार है, इसके रावी ज़्यादा दमदार हैं, इसके मतलब हदीसों से भी कोई मसले का हल नहीं है। अगर हल हो पाता तो सब एक ही तरीके पर हो जाते, यानी या तो सारे के सारे रफ़-ए-दैन करने वाले होते या रफ़-ए-दैन ना करने वाले होते। तो ये एक ज़माने से चला आ रहा है। आज भी रफ़-ए-दैन करने वाले भी काफ़ी तादाद में हैं और रफ़-ए-दैन न करने वाले भी काफ़ी तादाद में हैं। यानी एक चीज़ में नहीं, अगर आप देखेंगे तो इख्तलाफ एक एक चीज़ में मिलेगा। तो मेरा मानना ये है, मेरा समझना जहाँ तक मैं सोचा हूँ, इस उलझन से बचने के लिए वो एक बेहतरीन बात ये है कि नमाज में या किसी भी इबादत में या किसी भी नबियों की सुन्नत में आज भी कोई फ़र्क नहीं है। जितने भी फ़िरके या जितने भी जमातें हैं, उनमें वो अहम बातें जिनकी वजह से, मिसाल के तौर पे नमाज नहीं होती, मैं आपको वो बातें बताता हूँ जिनकी वजह से नमाज नहीं होती। वो अहम बातें क्या हैं? वो अहम बातें